Namaskar, good evening viewers. You're watching House Highlights on Sansad TV. I'm your host Rajiv Kumar Singh. In this program, we will take a look at all that transpired on Thursday in the two houses of Parliament. Before we delve into the details, let us take a quick look at the headlines. Lok Sabha passes the Disaster Management Amendment Bill 2024. The Minister of State for Home Affairs, Nityanand Rai, had moved the bill on Wednesday. The bill amends the Disaster Management Act 2005. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari backs for Accident Prevention Committee under every Member of Parliament, laments deaths of young people in road accidents. 60% of road accident victims between 18 to 34 years old, informs Gadkari. The chairman has been impartial in his dealings, stresses former Prime Minister Deve Gowda amidst uproar. Pitched battle between the Treasury and opposition benches ruins another day in the Rajya Sabha. Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar on Thursday extended birthday greetings to senior member Sharad Pawar and Harsh Mahajan. Let us listen into his greetings. Honorable members, pleased to extend greetings to Honorable Member of Parliament Shri Sharad Pawar ji and Shri Harsh Mahajan on their birthdays. Shri Sharad Pawar ji, Padam Vibhushan awardee, a four-time Chief Minister of Maharashtra, 1978 to 1980, 1988 to 1990, 1990 to 91, and 1993 to 95. Former Union Defence and Agriculture Minister is serving his second term in this August House since April 2020. Shri Pawarji comes with extensive legislative experience of having served in Lok Sabha 7 terms. Six terms in Maharashtra Legislative Assembly and 1 term in the Maharashtra Legislative Council. His long and distinguished career reflects his leadership and deep influence in both state and national politics. His multifaceted personality and his administrative qualities have been witnessed while he had been the president of the ICC, the BCCI, and Mumbai Cricket Association. His book, On My Terms, a rich, insightful, and remarkable memoir of his contributions to public life. Shri Sharad Pawar is married to Srimati Pratibha Pawar, and the couple is blessed with daughter Srimati Supriya Sule, who was a former member of this House 2006 to 2009, and since then continually she is in her 4th term in the Lok Sabha, having been recently elected in 2024. Honorable members, on my own and on behalf of this House, I wish him a happy, long and healthy life and extend greetings to his family members. I cherish a strong personal bond with the family for last over 3 decades. Honorable members, Shri Harsh Mahajan is serving his 1st term in Rajya Sabha
since April 2024. Sri Mahajan served for 3 terms in Himachal Pradesh Legislative Assembly as you were saying something. Indian National Congress. आप तो रिश्तों को बहुत जल्दी भूल जाते हो। आपको रिश्ते याद ही कहाँ रहते हैं? रिश्तों की अहमियत समझो थोड़ा। इन रिश्तों की तिलांजलि नहीं दी जाती है, इन रिश्तों को पूजा जाता है, सर्जन किया जाता है। चोट करनी है तो दिमाग पर कीजिए, दिल पर नहीं। Shri Harsh Mahajan has been a cabinet minister of animal husbandry in government of Himachal Pradesh from 2003 to 2008. He has been a recipient of Himachal Kesari Award 2007 for exemplary contributions to public life. He is married to Srimati Uma Mahajan and the couple is blessed with son Viraj Mahajan and daughter Subhadra. Honorable members, on my own and on behalf of this house, I wish him a happy, long and healthy life and extend greetings to his family members. The chairman informed the House that he had received 6 notices under Rule 267. He said, except for one, he had given his ruling regarding 5 other notices. What else did the chairman had to say on this matter? Let us listen in. Honorable members, I have received 6 notices under Rule 267. Except one, on all others, I have already given my ruling. The one on which my ruling has not come so far is a notice emanating from Srimati Renuka Chaudhary demanding discussion on alleged derogatory and divisive statements made by a sitting judge of the Allahabad High Court. Honorable members, Article 121 of the Constitution places restrictions on discussion on the conduct of a judge in discharge of his duties except upon a motion praying for removal of the judge. 1 second. And when it is not on duty, I am referring to another rule, a rule made by this House. When we talk of rules, I would greatly appreciate honorable members to reflect. Let us not jump to conclusions. The rule is very categorical. Let me read Rule 238. And the rule is formulated by us. And the rule says, rules to be observed while speaking. Reflect upon a member while speaking shall not. This is a rule formed by us. Subclause 5 shall not reflect upon the conduct of persons in high authority unless discussion is based on a substantive motion drawn in proper form. Explanation says the words persons in high authority means persons whose conduct can only be discussed on a substantive motion. The leader of the House, J.P. Nadda, on Thursday said that the Rajya Sabha chairman's rulings cannot be questioned or criticized by the members. He once again alleged opposition, mainly the Congress party, of having foreign links which are against India's interest. The chair cannot be questioned with regard to the admissibility and for other purposes. Chair
chairman's ruling cannot be questioned or criticized. To do so, Sabhapati ji, to do so is contempt of the house and the chairman. ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया है. मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री खड़गे जी, जो बहुत सीनियर लीडर हैं, वयोवृद्ध नेता हमारे, जो बहुत ही तजुर्बेकार हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयर को क्रिटिसाइज किया. ये बहुत ही आपत्तिजनक है. दिस इज ऑब्जेक्शनेबल. ये कंडेमनेबल है. ये निंदनीय है और ये गलत परंपरा को रास्ता दिखाता है. इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम पड़ेगी. इसको कंडेम करना चाहिए बाय वन एंड ऑल. और जैसा मैंने कहा कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि इनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है. मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको एक बार नहीं अनेकों बार चेंबर में बुलाया गया है. लेटर्स हैव बीन रिटन बाय द चेयर. बैठ जाइए, ये बोल रहे हैं. लेटर्स हैव बीन आपका कोई रिटन. ऐसा अधिकार नहीं है कि कोई भी बोले तो आप बोलेंगे. लेटर्स हैव बीन रिटन. आप यहाँ भी बोलेंगे, बाहर भी बोलेंगे, मर्जियों जैसे बोलेंगे, सुना Letters have been written by the chair to the leader of the opposition time and again to participate not on the seat. and come to the chamber. But the leader of opposition has always denied, and he has also not participated in the BSc meeting also in the last meeting. ये बताता है कि प्रजातांत्रिक परंपराओं की व्यवस्थाओं में कितनी आपकी रुचि है और कितना आप उसका आदर करते हैं. इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए. मैं यह भी यहां उद्धृत करना चाहता हूं कि आपके ऑफिशियल हैंडल से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से चेयरमैन को चेयर लीडर कहा गया है. इसकी जितनी भर्त्सना की जाए एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को इस तरीके से डेरोगेट करने का, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को इस तरीके से डिमीन करने का जो आपने कुत्सित प्रयास किया है, जो गलत प्रयास किया है, जो प्रजातांत्रिक मूल्य और संसदीय प्रणाली को आपने झटका दिखाया है, भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस को और कांग्रेस पार्टी को. Former Prime Minister and member of the Rajya Sabha, H.D. Devegowda, on Thursday said that the chairman has been impartial in his dealings in the House. Let us listen in. I may be prohibited to speak on the notice issued by our honorable friend, the impeachment notice about 2 days back. They have issued and they want to demand for the discussion. Under the rule, it cannot be taken
Proceedings in the Lok Sabha began with the question hour. Out of 20 listed questions, queries related to port connectivity, highway corridor, MSME industries in Ludhiana, cashless treatment of road accident victims, data on road accident fatalities, construction of national highways, CSR funds spent by NTPC and national highways in Maharashtra could be asked verbally in the House on Thursday. Answering to a question on cashless treatment of road accident victims, Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari said the pilot project being run in 6 states has saved 2,100 lives. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मोदी सरकार और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मोटर अधिनियम 1988 की धारा 162 के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं में घायल के इलाज के लिए कैशलेस की व्यवस्था की कि उनका इलाज हो सके। लेकिन ये 6 राज्यों में मान्य किया गया। इसमें आयुष्मान भारत के अंतर्गत पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत ये योजना लागू की गई। लेकिन ये आसाम, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, पुडुचेरी, उत्तराखंड सहित केवल 6 राज्यों में है। वहीं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि कैशलेस इलाज में जिन मरीजों के गंभीर दुर्घटनाओं में जो घायल हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, उनके सिर में चोट आ जाती है, कई जगह फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसमें एक बाध्यता भी है कि दुर्घटना के 7 दिन के भीतर और 1.5 लाख रुपए तक का ही इलाज हो सकता है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या ये योजना पूरे देश भर में लागू की जाएगी और 7 दिन और 1.5 लाख की जो बाध्यता है उसको क्या समाप्त करके उसको ओपन किया जाएगा? माननीय सभापति महोदय, हमारे देश में दुर्भाग्य ये है कि रोड एक्सीडेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है। 4,80,583 क्रैशेस हुए और मरने वालों की संख्या जो 1.5 लाख थी वो 1,72,890 हुई है। नीति आयोग और एम्स के रिपोर्ट में ये आया है कि 30% ऑफ द टोटल डेथ जो है वो ड्यू टू जो मेडिकल इमरजेंसी में जो सर्विस मिलनी चाहिए, एक्सीडेंट जिनका होता है उनको न मिलने के कारण मृत्यु होती है। और इसलिए ये कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम लाई है। इसमें जो व्हीकल इंश्योरेंस होगा उसमें 7 दिन तक का खर्चा या 1.5 लाख रुपए, इसमें से जो भी होगा उतना 1.5 लाख रुपए तक वो उनको तुरंत मिल जाएगा। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है आयुष्य का और हेल्थ कमीशन का, स्टेट गवर्नमेंट के नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और उनके कॉर्नर पुलिस, हॉस्पिटल, स्टेट हेल्थ एजेंसी, तुरंत ये पैसा मिलेगा। सम्मान्य सर, मुझे कहते हुए आपको अभिमान होता है कि ये टनल की एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी। हमने 1 साल मेहनत करके वो 5,600 करोड़ में 5,000 करोड़ इसमें बचा है। वो टनल का 75% काम पूरा हुआ। फिर झेड़मोड़ टनल आती है जहां अभी आतंकवादियों ने हमला किया था हमारे कैंप पर, वो पूरी हो गई है। आज प्रधानमंत्री जी की डेट उसके लिए हम लेकर उद्घाटन करने वाले हैं। फिर हम श्रीनगर आते हैं, श्रीनगर से जम्मू के बीच में 18 टनल बन गई है और दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे से वाया अमृतसर हम दिल्ली आते हैं और दिल्ली जुड़ने के बाद आपके मतदार क्षेत्र से आगे ये मुंबई दिल्ली हाईवे जो है ये सूरत जाता है। अब जो उत्तर से दक्षिण जाते थे उनको मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर जाना पड़ता था, अब उनको जाने की ज़रूरत नहीं। अब नया एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, मंगलोर, कोची, पूरे साउथ को। तो अध्यक्ष महाराज ये जो पूछ रहे हैं, ये हाईवे चेन्नई से दिल्ली का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम कर रहा है। यानी ये गुजरात, और ये बहुत विशेषता है कि जैसे आपके राजस्थान में ये पूरे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से जा रहा है। तो मुझे लगता है ये हिंदुस्तान का दिल्ली मुंबई से भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो उत्तर को दक्षिण से जुड़ने वाला है। उसमें इनका धाराशिव, उस्मानाबाद आता है और उसको एक स्पर देना चाहिए, जैसे हमने कोटा के लिए दिया है। उनकी मांग है, हम उसको जरूर कंसिडर करेंगे। In response to a question on CSR funds spent by NTPC, Power Minister Manohar Lal addressed and dispelled allegations of misuse of these funds. Let us listen in. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रावधान ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन 135 में किया गया है और इसमें बहुत विस्तार से सारा सिस्टम बनाया गया है कि जो भी कंपनी जिसका वर्ष के अंदर
500 करोड़ रुपया या इससे अधिक टर्नओवर होगा, अथवा जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपया लेकिन टर्नओवर 1000 करोड़ रुपया होगा, प्रॉफिट 5 करोड़ या इससे अधिक होगा, तो ऐसे कंपनी को एक अपनी CSR कमेटी बनानी होगी और वो CSR कमेटी, उसके प्रावधान दिए गए हैं अंडर शेड्यूल 7, जिसमें 12 तरह की एक्टिविटीज़ को शामिल किया गया है और वो कमेटी बैठ के तय करेगी कि इसमें से किस किस एक्टिविटी की जो डिमांड आई हुई है उस डिमांड के आधार पर कितना पैसा कहाँ खर्च करना है। इस खास करके जिस प्रश्न की बात की जा रही है इसमें स्पष्ट बताया गया है कि जो NTPC की प्रावधान उस कमेटी ने बनाए हैं उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उसमें बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो डिमांड आएगी उसको भी कंसल्ट किया जा सकता है, पंचायतों से डिमांड आएगी उसको किया जा सकता है, उनके अपने सर्वे हैं उसमें भी किया जा सकता है, किसी भी प्रकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस वो भी की जा सकती हैं। ऐसे बहुत से प्रावधान किए गए हैं। इस पर्टिकुलर केस के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और एक पत्र लिखा जिसमें ये कहा गया कि ऐसे इस क्षेत्र के अंदर 25 इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दे दी जाए, उस प्रावधान के अंतर्गत आता है। जहाँ तक इसकी डेट की बात है कि किस डेट को दिया गया और चुनाव के समय दिया गया, पहली बात तो जानकारी ये है कि चुनाव के बाद का सारा विषय है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव ये सितंबर में समाप्त होता है, ये अक्टूबर के अंदर सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। 1 अक्टूबर 24 की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से पत्र दिया गया है। अगली बात बैठिए, अगली बात, अगर किसी प्रकार का कोई चुनाव से जुड़ा विषय है तो चुनाव का जुड़ा विषय हमारे सदस्य महोदय, ये विषय चुनाव आयोग का होता है। इनको किसी प्रकार का वहाँ कोई उल्लंघन लगता है कि चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत ये हुआ है तो चुनाव आयोग को शिकायत करनी चाहिए और उसमें कोई ना कोई इनको एक्शन लेना चाहिए, इसमें तो आपत्ति नहीं है। During 0 hour, BJP member Nishikant Dubey once again attempted to raise the issue of Congress allegedly having links with foreign nationals and institutions hostile to the Indian Parliament. He accused the main opposition party of colluding with foreign entities aiming to destabilize the country. Opposition parties responded with slogans during Nishikant Dubey's statement, leading to the adjournment of the House until 1 p.m. कांग्रेस से राहुल गांधी से मेरे 10 सवाल हैं और ये 10 सवाल पिछले 4 दिन से विपक्ष बोलने नहीं दे रहा है। सबसे पहला सवाल ये है कि FDL AP जो कश्मीर को अलग देश मानता है, उसके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन के सोनिया गांधी के साथ क्या संबंध है, जिसको सोरोस फंड करता है? सोनिया और सोरेस का रिश्ता क्या है? दूसरा सर, नाम्बियर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है 150 करोड़ का घोटाला सैम पित्रोदा ने किया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ कांग्रेस का वो चेयरमैन है, वो ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव चलाता है, जिसको सोरोस पैसा देता है, जिसको USAID पैसा देती है, और राहुल गांधी के अमेरिका दौरे का सारा खर्चा ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव सैम पित्रोदा देता है। ये खालिस्तानियों से मिलता है, ये कश्मीर तोड़ने वालों से मिलता है। सैम पित्रोदा, राहुल गांधी, सोरोस और ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव का संबंध क्या है? तीसरा सर, 2004 में सोरोस यहाँ आया, 2009 में सोरोस यहाँ आया, उसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5% स्टेक लिया। 2010 से लेके 2014 तक पूरा शेयर मार्केट से सोरोस पैसा लेता रहा। वो गांधी फैमिली से मिला। सोरोस और गांधी फैमिली का संबंध क्या है? मेरा चौथा सवाल सर, राजीव गांधी फाउंडेशन को सबसे ज्यादा पैसा सोरोस ने दिया। सोरोस जो है मनोज भार्गव, हंस फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन और किंगडम के साथ ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ सोरोस का रिश्ता क्या है?
वो सारे कांग्रेस के 300 लोगों को, कांग्रेस पार्टी के 300 लोगों को उसने जो है स्टार्टअप के नाम पर पैसा दिया है। ये 300 लोग कौन है और गांधी परिवार के साथ उनका क्या संबंध है? The Lok Sabha on Thursday further discussed and passed the Disaster Management Amendment Bill 2024. The Minister of State for Home Affairs, Nityanand Rai, had moved the bill on Wednesday, 11th of December. The bill amends the Disaster Management Act 2005. Let us listen into the excerpts from the discussion that took place in the Lok Sabha. केंद्र सरकार पर आरोप है कि केंद्र सरकार वायनाड की घटना को संवेदनशीलता से नहीं ली है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से इस सदन में कई बार कह चुका हूं और माननीय गृह मंत्री जी भी स्पष्ट रूप से वायनाड के विषय में बताए हैं। और कई बार जब विपक्ष ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस विषय को उठाया है तो उसको भी उस के रूप में स्पष्टता की वायनाड में किस प्रकार से मोदी सरकार सजग रही और संवेदनशील रही। माननीय प्रधानमंत्री जी स्थिति की लगातार नजर रखे हुए थे। माननीय गृह मंत्री जी खुद मुख्यमंत्री जी से लगातार संपर्क में थे। सरकार की ओर से हर संभव सहायता समय पर प्रदान की गई है। That is all we have in this episode of House Highlights. We will keep you abreast with further developments during the winter session of Parliament. Keep watching Sansad TV. Good night.